فقد قال الله تبارك في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم أحاسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون بآواز اللہ السلام. پروردگار عالم اپنی لارے کتاب مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے، اے حبیب ان سے کہہ دو، سورہ مبارکہ عنکبوت آیت نمبر 2. اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے حبیب ان سے کہہ دیجئے، کیا لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ وہ صرف اس چیز پہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے کر آئے؟ کیا لوگوں نے یہ گمان ان کے دماغوں میں ہے کہ ہمیں بخش دیا جائے گا اس چیز پہ کہ ہم ایمان لے کر آ گئے، ہم موت و حیات پہ ایمان لے کر آئے؟ کیا صرف ایمان کے لے آنے کی وجہ سے خالق لم یزل ہمیں آزمائے گا نہیں اور ہمیں معاف کر دے گا؟ اللہ نے کہا کہ نہیں، بالکل ہرگز ایسا نہیں ہے کہ صرف زبان سے قبول کر لینے سے، صرف زبان سے کہہ دینے سے کہ ہاں پروردگارہ میں تجھ پہ ایمان رکھتا ہوں، جنت و جہنم پہ ایمان رکھتا ہوں، تیرے نبی پہ ایمان رکھتا ہوں، تیری کتاب پہ ایمان رکھتا ہوں، کیا صرف زبان سے اقرار کر لینے سے آیا انسان کی بخشش ہو جائے گی؟ صرف اتنا کہہ دینے سے کیا انسان چھوٹ جائے گا اور آزمائش کے ترازو میں نہیں ڈالا جائے گا؟ یہ سوال ہے برادران اسلام سے اللہ کی طرف سے. اللہ نے کہا ہے کہ انسان کو خود غور و فکر کرنی چاہیے، انسان کو خود سوچنا چاہیے. زبان سے کہہ رہا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، خالق لم یزل کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. بس جب اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، جب اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ہستی اور کوئی ایسی ذات نہیں، تو پھر انسانوں سے توقعات انسان کو نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جتنی بھی توقعات ہیں وہ صرف خداوند متعال کی ذات سے ہونی چاہیے. جب میں مریض ہو جاؤں فائزہ مرضت فہو یشفین، جب مریض ہو جاؤں تو شفا کس نے دینی ہے؟ خالق لم یزل نے دینی ہے. اور جب بے اولاد ہوں تو اولاد کس نے دینی ہے؟ خالق لم یزل نے دینی ہے. جب بے روزگار، لا الہ الا اللہ کا یہی مطلب ہے، کوئی معبود نہیں. حبیب صرف مجھے کوئی معبود نہیں، صرف ماننا کافی ہے یا اس پہ عمل کرنا بھی کافی ہے؟ اے حبیب جب مجھے یہ مان رہے ہیں تیری امت والے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو بس کوئی معبود نہیں ہونا چاہیے انسان کا، صرف خالق لم یزل معبود ہونا چاہیے. اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں ہم، کیا صرف مان لینا کافی ہے خداوند متعال کی کتاب کو؟ نہیں عزیزان گرامی، اللہ نے کہا ہے کہ صرف زبان سے اقرار کر لینے سے انسان ہدایت نہیں پا سکتا، بلکہ انسان کو چاہیے، اگر انسان کے لیے اللہ نے کتاب کو نازل کیا ہے، اگر کتاب کو اس زمین پہ لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، تو انسان کو چاہیے اس کتاب سے تمسک حاصل کرے. انسان کو چاہیے اس کتاب سے پوچھے میرے لیے کون سا راستہ صراط مستقیم کا راستہ ہے اور کون سا راستہ مجھے جہنم اور شیطان کی طرف لے کے جا رہا ہے. تو بس آمنا وہم لا یفتنون، اے حبیب صرف زبان سے اقرار کرتے ہیں یہ لوگ. کیا صرف زبان سے تجھے محمد اور تجھے اللہ کا نبی کہہ دینا ان کے لیے کافی ہے؟ نہیں، صرف زبان سے میرے نبی کو نبی کہنا کافی نہیں، بلکہ میرے نبی کے حسن اسوہ پہ چل کے انسان بتا دے کہ جو میرے نبی کا راستہ تھا میرا بھی وہی راستہ ہے. تو اس محبت کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت بھی راضی ہوگا اور اللہ کا نبی بھی راضی ہوگا. ایک اور آیت کریمہ ہے، قال فإن قد فتن قوم من بعدكم وأصلهم السامري. ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ اس قوم سے پہلے اللہ نے جتنی قومیں بھیجی ہیں ان کو بھی آزمایا گیا ہے، آزمائش کی گئی ہے، ان کا امتحان. صرف لوگوں سے آزمائش نہیں کی گئی بلکہ انبیاء کو بھی آزمایا گیا ہے.
मैं आगे चल के एक रिवायत पढ़ूंगा, ये आयत सुन लें सबसे पहले। आयत करीमा में इरशाद होता है वलनब्लुवन्नकुम, इससे भी सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक इंसान जिस चीज के लिए सारी जिंदगी खर्च करता है, जिस चीज के लिए इंसान हलाल और हराम में फर्क खत्म कर देता है, जिस चीज के लिए इंसान सारी सारी रात जागता है, जिस चीज के लिए इंसान अपनों का हक मारता है, गैरों का हक मारता है, चोरियां करता है, झूठ बोलता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में उस चीज को फितना करार दिया है। किस वजह से इंसान हलाल और हराम में फर्क खत्म करता है? अपनी औलाद के लिए या माल के लिए। क्यों इकट्ठी कर रहे हो जी? औलाद का अच्छा मुस्तकबिल हो जाएगा। क्यों इतना समेट रहे हो? औलाद का अच्छा मुस्तकबिल के लिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा है अल मालो वल बनून फितनतुन, माल भी फितना है, औलाद भी फितना है। यानी माल भी इंसान, मासूम से पूछा गया, मासूम ने कहा कि जानते हो ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं कि जब इंसान का वक्त मर्ग करीब आएगा और मलकल मौत उसका रूह कब्ज करने के लिए खड़ा होगा, तो कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं जो इंसान के सामने आएंगी? तो लोगों ने कहा या रसूलल्लाह आप बता दीजिए कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं। मासूम ने फरमाया 3 ऐसी चीजें हैं कि जो जब इंसान मर रहा होगा, उसकी आखिरी सांसें उसके हलक और जिस्म से निकल रही होंगी, मलकल मौत जब उसकी रूह कब्ज कर रहा होगा, तो 3 चीजें इंसान उनको अपने सामने देखेगा। सबसे पहले माल को अपने सामने देखेगा, फिर औलाद को अपने सामने देखेगा, और तीसरे नंबर पर अपने आमाल को अपने सामने देखेगा। माल से कहेगा भाई साहब सारी जिंदगी तेरी वजह तो चट करके आया, सारी जिंदगी में रेसों में लगा रहा हूं, दौड़ों में लगा रहा हूं, कहीं से हराम आया है तो समेटा है, कहीं से हलाल आया है तो समेटा है, कहीं पे झूठ बोल के इकट्ठा किया है, किसी का हक मार के, किसी पे जुल्म करके तुझे समेटता रहा हूं। भाई साहब ये तो बता दो क्या आप कब्र में हाशिर तक मेरे साथ जाने वाले हो? माल कहेगा नहीं, मेरा तुम्हारा साथ सिर्फ इतना है, मेरे साथ तेरे अहलो अयाल, तेरे वारिस मेरे जरिए तेरा कफर खरीद सकते हैं, तेरे साथ चावल चुवल पका सकते हैं, तेरे लिए मेरे साथ मंजी और बिस्तरा लाकर रख सकते हैं, मौलवी को कुछ दे सकते हैं, मेरा साथ इतना है, कब्र में मैं तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं। इंसान सिवाय अफसोस करने के कुछ नहीं होगा। सर पे पीटेगा, रिवायत कहती है सर पे पीट के कहेगा भाई वो मुझ पे एक ऐसी चीज के लिए मैंने सारी जिंदगी खर्च कर दी, एक ऐसी जिंदगी के लिए मैंने अपनी सारी जिंदगी तबाह कर दी कि जिसका साथ इतना भी नहीं कि कब्र तक मेरे साथ चल के जा सके। उसके बाद औलाद से कहेगा क्या तुम तो मेरे साथ जाने वाले हो ना कब्र में? तो मेरी तरफ रखिएगा 2 मिनट, क्या तुम तो मेरे साथ जाने वाले हो कब्र में? औलाद कहेगी नहीं अब्बा जान, हमारा साथ सिर्फ इतना होगा, तुझे उठाएंगे, तातुल हनक पहनाएंगे, जनाजा पढ़ेंगे, नहलाएंगे, कफन पहनाएंगे, कब्र खुदवा के कब्र के अंदर दबवा देंगे, हमारा साथ सिर्फ इतना होगा, इससे आगे हम भी नहीं चल सकते। माल भी नहीं गया, औलाद भी नहीं गई। औलाद के लिए इंसान इकट्ठा करता है, अजीजान गिरामी, औलाद के लिए इंसान हलाल और हराम का फर्क खत्म करता है। अच्छा माल और ज्यादा माल समेटने के लिए इंसान इतना कुछ, ना दिन को सो रहा है ना रात को सो रहा है, नमाज का वक्त है तो पता नहीं इधर अजान हो रही है उधर खेती बाड़ी करने में मसरूफ है। क्यों? औलाद के लिए कर रहा है ना। औलाद क्यों कमा के खिलाने के लिए कर रहा है? बकरियां चराने गया है तो औलाद के लिए चरा रहा है बकरियां। जिस औलाद के लिए इंसान ने वाजिबात छोड़े, मुहर्रमात का ख्याल नहीं रखा, हलाल का ख्याल नहीं रखा, हराम का ख्याल नहीं रखा, वो औलाद भी कहती है अब्बा जी साडा तुहाडा कोई साथ कोई नहीं, सिर्फ कब्र में दबवाने तक, रोने तक हम तुम्हारे साथ हैं, उसके बाद अंधेरी कब्र जाने और तुम जानो हम तुम्हारी कब्र में आने वाले नहीं है। अजीजान गिरामी तीसरे नंबर पर आ जाता है, सर पे मातम करेगा, रोएगा, माल की बात सुन के भी रोएगा, औलाद की बात सुन के। मासूम बोलेगा मैं सादिक का वाक्य सुना रहा हूं मैं, मासूम कहते हैं रोएगा, औलाद पे रोएगा कि मेरे साथ चलने वाले नहीं,
कुरान मजीद में इरशाद हुआ है ना, अलमाल वल बनून फितनतुन, माल और बनून और औलाद फितना है इस रोए जमीन पे इंसान के लिए। हलाल भी इंसान से करवाते हैं तो माल और बनून औलाद करवाती है, अगर हराम में मुब्तला करवाती है तब भी इंसान को यही दो चीजें करवाती है। उसके बाद आमाल होंगे, आमाल से कहेगा तुम्हारी तरफ तो तवज्जो ही नहीं की थी मैंने कभी, तुम्हारी तरफ से तो देखा भी नहीं था कभी मैंने, मेरा इखलाक इतना अच्छा नहीं था, मेरा लोगों के साथ मिलने का अंदाज इतना अच्छा नहीं था, मेरा बोलने का अंदाज इतना अच्छा नहीं था, मेरे आमाल इतने बद से बदतर हैं, इतने बुरे हैं, मैं किसी से बात करता हूं तो गाली देकर शुरू करता हूं, गाली देकर खत्म करता हूं। मैं अगर नमाज का वक्त होता है तो मैं अपने रोजमर्रा जिंदगी में मसरूफ रहता हूं। और खबरदार ये ना कहा करो मैं नमाज कोई नहीं पढ़ता। मासूम फरमाते हैं जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत वो बंदा ऐ ना सोचे कि मैं अपनी वजह तो नमाज कोई नहीं पढ़ता, बल्कि अपने गुनाहों की तौबा करे कि अल्लाह ने मुझसे नमाज पढ़ने की तौफीक ही सल्ब कर रखी है। ये ना कहे कि मैं नहीं पढ़ता, मैं बड़ा कोई शेर बन के फिर रहा हूं, नहीं, बल्कि अल्लाह चाहता ही नहीं है ये मेरी बारगाह में आए, अल्लाह उसको तौफीक ही नहीं दे रहा। एक दिन में 5-5 3-3 मरतबा मुअज्जिन मेहराब मस्जिद में खड़ा होकर हय्या अलल सलाह, हय्या अलल सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह कहता है, ये बंदा उसकी आजान की आवाज भी सुनता है, तवज्जो भी करता है, फिर भी इसको इतनी तौफीक नहीं होती। चौक पे खड़ा होकर गप्पे लगाता रहेगा, चौक पे खड़ा होकर बातें करता रहेगा, किसी के घरों में बैठा रहेगा, चाय पीता रहेगा, फजूलियात में जिंदगी गुजारता रहेगा। अल्लाह इसको इतनी तौफीक नहीं देगा ये अल्लाह की बारगाह में आके सर सजदे में रख के अपने गुनाहों की माफी मांग सके। कोई ये ना कहे कि मैं अपनी मर्जी से नमाज कोई नहीं पढ़ता, नहीं, अल्लाह नहीं चाहता। अगर नहीं पढ़ रहे हो तो अल्लाह से उन गुनाहों की माफी मांगो जिन गुनाहों की वजह से तेरी और मेरी नमाज कज़ा हो रही है। दिन की इब्तिदा होती है सुबह की 2 रकत नमाज से। वो बहलोल के करीब से गुजर रहा था ना जुनैद बगदादी। जुनैद बगदादी बहुत बड़ा फकीह और आलिम था अपने दौर का। तो मिस्र का एक चौक था, तो बहलोल एक लकड़ी का घोड़ा बना के उस पर सवार होके, वो बहुत बड़े फकीह थे। 5 इमामों के दौर को देखा था हजरत बहलोल ने, तवज्जो है सबकी, 5 इमामों के दौर को, 5वें से 10वें इमाम तक हर इमाम के दौर में रहे हैं, मुश्किल से मुश्किल हालात देखे हैं, जुल्म बर्दाश्त किए हैं, कैदें देखी हैं, जिंदान देखे हैं, फौजियों के जुल्म देखे हैं। तो जुनैद बगदादी अपने दौर का बहुत बड़ा आलिम दीन, ये लिबास लबूस अमामे शमामे पहन के जा रहा, पीछे कोई 100-150 नौजवान लड़के। तो बहलोल दौड़ते दौड़ते आगे गए, आगे जाके बहलोल कहते हैं कि जुनैद बगदादी कहाँ जा रहे हो? तो जुनैद कहते हैं कि इन लड़कों को फलां जगह पे लेकर जा रहा हूँ, इनको दर्स दूंगा, इनको क्लासें दूंगा, इनको सिखाऊंगा, तालीम और तअद्दुब इनको सिखाऊंगा, अदब सिखाऊंगा, तालीम दूंगा इनको। बहलोल मुस्कुराए, मुस्कुरा के कहते हैं तुम्हें खुद भी कुछ को आता है या इनको सिखाने के लिए लेके जा रहे हो? मुश्किल है ना। मैं पढ़ाने के लिए बैठा हूँ, एक बंदा आके कह दे मौलवी साहब तेनू को जानता है या इन्होंने पढ़ाने वास्ते बह गए हो तुसा, है गुस्सा लगेगा या नहीं लगेगा कि मैं पढ़ाने के लिए बैठा हूँ, मुझे कह रहा है तुम्हें कुछ आता है? तो इतना बड़ा आलिम दीन, उसके चर्चे थे उस दौर में बहुत बड़ा, जुनैद बगदादी, हिस्ट्री भरी पड़ी है, इतना बड़ा किताबें हैं बकायदा उसकी। तो गुस्सा होने लगा कि ये मुझे क्या कह रहा है, मेरे इतने शागिर्द हैं, मुझे खत लिख लिख के इन्होंने बुलाया है, मैं इनको हफ्ता 10 दिन दर्स देने के लिए आया हूँ। बादिया नशीन था, एक बस्तियों में रहता था। तो बहलोल को कहता है बहलोल ये तो अजीब बात हो गई, ये सारे मेरे इल्म के कायल हैं, तुम मेरे इल्म के कायल नहीं। बहलोल कहता है मैं तुम्हारे इल्म का कायल तब हो जाऊंगा जब मुझे तुम 3 सवालों के जवाब दोगे। अच्छा, जहां पर भी मैंने 3 चीजों वाली बात की है, तीसरी चीज हमेशा मेरे जहन से निकल जाती है, 2 चीजें मेरे जहन में रह जाती हैं। तो बहलोल ने कहा, जुनैद ने कहा हाँ, तीसरी मैं नहीं बता पाऊंगा, अगर बात रहा तो फिर बताऊंगा। जुनैद ने कहा हाँ 3 चीजें पूछो, मैं तुम्हें बताता हूँ ताकि तुम भी मेरे इल्म के कायल हो जाओ। तो बहलोल कहते हैं कि जुनैद बगदादी इतने बड़े आलिम बने फिरते हो, ये बताओ इंसान को दिन की शुरुआत कैसे करनी चाहिए? तो ये कहते हैं कैसे क्या करनी चाहिए? बस जैसे इंसान मुर्ग की आवाज सुने उठ पड़े, और उठते ही अल्लाह का सजदा करे, नमाज पढ़े, और नमाज पढ़ने के बाद रोजी रोटी की तलाश में निकल जाए। बहलोल कहते हैं मुझे तुम्हारे इल्म पे इतना ताज्जुब हो रहा है
अशरफ उल मखलूकात हो के एक जानवर की आवाज की वजह से उठते हो तुम सुबह सुबह। अशरफ उल मखलूकात हो के अल्लाह ने तुम्हें अशरफ बनाया है, मुर्ग से बेहतर बनाया है। तुम्हारी सुबह की इब्तदा ही बेहतर नहीं है, इंतहा कैसे बेहतर गुजरेगी? तो कैसे उठना चाहिए? मोबाइलों के सहारे से नहीं, बल्कि इंसान की आदत बेचैन होना चाहिए इंसान बिस्तर में, कि जब तक अल्लाह को सजदा नहीं करूंगा तब तक मुझे सुकून की नींद नहीं आने पाएगी। और दूसरी चीज बहलौन ने पूछी, ए जुनैद बगदादी, ये बताओ कि क्या तुम्हें खाना खाने के आदाब आते हैं या नहीं आते? खाना कैसे खाया जाता है पता है तुम्हें या नहीं पता? तो जुनैद कहता है अल्लाह, भी कोई मुश्किल गल है, इतनी आसान सवाल है, मुझे बच्चे बच्चे को पता है खाना खाने के आदाब। कहते हैं जुनैद साहब आप बता दीजिए, अलामा साहब आप बता दे खाना खाने के आदाब क्या होते हैं। तो कहते हैं खाना खाने के आदाब यही होते हैं, सबसे पहले हाथ धोए जाएं, बिस्मिल्लाह पढ़ी जाए, उसके बाद छोटे छोटे निवाले खाए जाएं, गरम रोटी ना खाई जाए, ठंडी रोटी, गरम रोटी का खाना मकरूह है, गरम गरम खाना, तो गरम खाना नहीं खाना चाहिए। तो उसके बाद जो है बिस्मिल्लाह, हाथ हो गए, छोटे छोटे निवाले चबा चबा के खाने चाहिए, हैं सीधे ही बंदा ना जान दे करे अपने पेट में, सीधे ही ना निकल जाए, चबा चबा के खाने चाहिए। उसके बाद खाने से फारिग होने के बाद दस्तरखान समेटे, अगर जंगल में खा रहा है तो दस्तरखान को वहां पे साफ करे, उसके बाद फिर से हाथ धोए, अल्हम्दुलिल्लाह कहे। तो हजरत बलोल ने कहा ये जितने भी तुम बता रहे हो ये फरुआत खाना है, असल खाना तुम नहीं बता रहे, यानी ये सारा खाना खाने के आदाब में से फरे हैं, असल नहीं है। तो ये कहते हैं बलोल आप बता दें असल क्या है, हमें तो हमारे उस्तादों ने सिर्फ इतना बताया है कि ऐसे खाना खाया जाता है। वो कहते हैं अगर तुम उस्ताद सादिक के अलावा किसी को बनाओगे तुम्हें असल नहीं बताएगा, फरे बताता रहेगा। तो बोलो तुम सादिक के शागिर्द हो तो तुम ही बता दो, मौला इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की दानिशगाह के शागिर्द थे। तो हजरत बलोल कहते हैं खाना खाने के आदाब में से सबसे पहले वाजिब है ये देखना जिसको बैठ के इंसान खाना चाहता है वो हलाल है या हराम है। हराम खाने को लाख मर्तबा हाथ धो के खाया जाए वो हराम हलाल नहीं हो जाता। हराम खाने को लाख मर्तबा बिस्मिल्लाह पढ़ के खाया जाए वो हलाल हराम नहीं हो जाता, बल्कि जिस दस्तरखान पे बैठ के इंसान खाना खाना चाहता है ये देखे जो खाना दस्तरखान पे सजाया गया है वो हलाल पैसों से लाया गया है या हराम पैसों से लाया गया है। ये है असूल खाना खाने के। अजीजान गिरामी, खालिक लम यज़ल ने इंसान को आजमाइश के लिए भेजा है, बाज़ वक़्त इंसान औलाद के जरिए से आजमाता है। एक आखिरी रिवायत जिसके लिए मैं इतना जो है सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पढ़ता, बस दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। एक ही रिवायत मौला इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का इरशाद गिरामी है कि इस दुनिया में अल्लाह रब्बुल क़ाल सादिक अलैहिस्सलाम इन्ना अज़ीमुल अजर लमा अज़ीमुल बला वमा अहब्बल्लाहु कौमन इल्ला तलाहुम, बेहतरीन वो इंसान है जिसको अल्लाह ने इस दुनिया में आजमाया हो, या गुर्बत के जरिए से आजमाया हो या बीमारी के जरिए से आजमाया हो। खालिक लम यज़ल इस दुनिया में अगर किसी को अता कर रहा होता है तो उसकी आजमाइश के लिए अता कर रहा होता है, और अगर किसी से छीन रहा होता है तो उसकी आजमाइश के लिए उससे ले रहा होता है। देख रहा होता है कि आया इसको अता करने के बाद ये इंसान इंसान ही रहता है या ये इंसान मेरे नेमतें मिलने के बाद खुद फिरौन बन जाता है इंसानियत के दामन को छोड़कर। बस अजीज़ान-ए-गिरामी, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मौत दी है, हयात दी है, तो उसका हदफ और मकसद यही होता है ताकि इंसान को आजमाया जाए। जिस इंसान को इस जमीन पे मौला इमाम सादिक फरमाते हैं जन्नत में एक ऐसा मकाम होगा कि उस मकाम पे कोई इंसान भी नहीं पहुंच सकता, यहां तक कि उस मकाम तक नबी भी नहीं जा सकते, मगर वो इंसान जिसको अल्लाह ने दुनिया में आजमाया हो, बीमारी के जरिए से आजमाया हो, या उसको गुर्बत देकर आजमाया हो, या अफलास देकर आजमाया हो, या फाके देकर आजमाया हो, वो इंसान जन्नत में उस मकाम पे जाएगा जिस मकाम पे नबी भी नहीं जा सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।